ویرا کو جب اس کے فرانس جانے کا معلوم ہوا تو وہ بہت خفا ہوئی۔ تم میرے ساتھ کیوں نہیں گئی؟ وہ بہت سخت ناراض تھی۔ تم نے فرانس نہیں جانا تھا اور مجھے فرانس دیکھنا تھا۔ وہ اپنے کپڑے الماری میں رکھ رہی تھی۔ تم کہتی تو ہم فرانس چلے جاتے۔ تم نے تو کہا تھا کہ تمہیں کہیں نہیں جانا۔ تم 3-4 بار فرانس جا چکی ہو۔ میرے ساتھ پھر سے جاتی تو تمہارا ٹور خراب ہو جاتا۔ تمہارے ساتھ ہوتی تو اس بار فرانس دیکھنے کا مزہ آ جاتا۔ ویرا نے منہ پھیلا لیا۔ سائی اس سے اتنا ناراض ہو گیا کہ خفگی کی زیادتی سے اس نے بات ہی نہیں کی۔ امتحانات شروع ہو گئے۔ اس بار امتحانات کی تیاری کے لیے وہ ارلی لرننگ نہیں گئی۔ اس نے گھر میں ہی تیاری کر لی اور دل لگا کر پڑھنے کی کوشش کی تاکہ اس کا رزلٹ اچھا رہے۔ سب کتابوں میں گم ہو گئی۔ کار تک صرف لائبریری میں پایا جاتا۔ البتہ ایما کو ارلی لرننگ میں زوردار کرنٹ کا جھٹکا دے کر اسے فلور پر لڑکھڑا کر اس نے اس کے دائیں ہاتھ میں فریکچر کروا دیا اور کوئی ایک بھی زندہ یا مردہ ثبوت نہ چھوڑا جو یہ ثابت کر سکتا کہ یہ سب اس نے کیا ہے۔ ایما نے انگوٹھی اس کے منہ پر دے ماری تھی۔ وہ اسے ہی اٹھا کر کہیں دے مارنا چاہتا تھا۔ آلیان کبھی کبھی ارلی لرننگ کے ہال میں ایسے ہی گشت کرتا پایا جاتا تو کارل اسے گھسیٹ کر اسٹڈی روم میں لے جاتا یا کبھی دور سے ہی چلاتا، تمہارا دماغی توازن ٹھیک ہو جائے تو اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ جانا۔ امتحانات ہو گئے، رزلٹ بھی آ گیا۔ چوتھا اور آخری سیمسٹر شروع ہو گیا۔ وقت نے اپنی تنابیں ڈھلی چھوڑ دیں اور وہ خلاف توقع سست روی سے گزرنے لگا۔ زندگی ایسی اداکارہ بن گئی جو میک اپ اتارے اگلا سوانگ رچانے سے پہلے پرسکون بیٹھے رہنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس کے ہاتھ گود میں ہوں اور وہ بڑی بے دردی اور بے حسی سے اپنا دھلا چہرہ آئینے میں دیکھ رہی ہو۔ شٹل کاک میں لیڈی مہر کے ایک ساتھ 4 بچے آ گئے تھے۔ ٹینس اور مارک 2 دن رہ کر چلے گئے جبکہ شارلٹ اور مورگن رہ گئیں۔ جارڈن آیا ہے؟ این نے شارلٹ سے ملتے ہی پوچھا۔ نہیں، شارلٹ پوری جان سے کہکا لگا کر ہنسی۔ ویرا کو آلیان کے مستقبل کی بیوی کی حیثیت سے لیڈی مہر نے ان سے ملوایا۔ ہفتے کے دن شارلٹ اور مورگن آلیان کو ساتھ لے کر مانچسٹر کی سڑکوں پر گھومتے رہے۔ ان دونوں نے آلیان کی جیب میں ایک پون نہیں رہنے دیا۔ ان تینوں کی آپس میں اچھی دوستی رہی تھی اور وہ رابطے میں رہتے تھے۔ تم مانچسٹر میں شادی کرو گے یا روس میں؟ ریسٹورنٹ میں ڈنر کرتے شارلٹ نے آنکھ مار کر پوچھا۔ مجھے ہمیشہ یہ شک کیوں رہا کہ ماما کے گھر میں ہی تمہاری دلہن موجود ہے؟ مورگن بولی۔ تم کچھ نیا تو کرتے آلیان۔ شارلٹ کے دانت ہی اندر نہیں ہو رہے تھے۔ نیا کیا؟ آلیان کو بیزاری سی ہونے لگی ایسی باتوں سے۔ یہی کہ تم کودتے پھاندتے، چھلانگے لگاتے، ویلن کے کارندوں کی فوج کو جل دیتے، بڑے سے فانوس پر جھول جاتے اور فانوس سے لہرا کر این اپنی ہیروئن کے سامنے جا کھڑے ہوتے اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بھگا لے جاتے۔ پلس اس کی لمبی سفید پوشاک جو اسے ٹھیک سے بھاگنے نہ دے رہی ہوتی تو تم اسے یعنی دلہن کو اٹھا لیتے۔ تم اتنی فلمیں دیکھنے لگی ہو شارلٹ؟ آلیان نے تعصب سے کہا۔ تمہیں کیا پتا آلیان کہ ہر لڑکی کے دل میں ایک ایسے ہیرو کی کتنی خواہش ہوتی ہے جو ہر خطرے کو پھیلاتا اسے اڑا لے جائے اور دنیا بس دیکھتی رہ جائے۔ تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہیں ایک ہیرو مل گیا۔ آلیان ہنس دیا۔ ہیرو پر فلم کا؟ میرا وہ صرف شوہر ہے۔ ایک ہنسا تک تو وہ کسی گنڈے کو مارنا نہیں چاہتا۔ کہہ کر شارلٹ اٹھی اور اجازت لے کر ہال کے مائک کے سامنے کھڑی ہو گئی اور آلیان مورگن کو مسکرا کر دیکھتا یعنی میں شروع ہونے جا رہی ہوں۔ اس نے مائک پر کچھ ابتدائی کلمات کہے اور ہال میں بیٹھے ڈنر کرنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا اور پھر وہ شروع ہو گئی۔ آلیان ویرا کی فرضی داستانیں عشق سنانے۔ ایک لڑکی ایک دن اپنی ہی دھن میں گنگناتی ہوئی سائیکل چلاتی جا رہی تھی کہ ایک بھلکڑ سے لڑکے کی سائیکل کے ساتھ اس کی ٹکر ہو گئی۔ لڑکی ویرا اور لڑکا آلیان۔ شارلٹ نے ہاتھ اس کی طرف اٹھا کر اشارہ کیا۔ سب گردنیں آلیان کی طرف مڑ گئیں۔ آلیان کو مسکرانا پڑا۔ یہ ان دونوں کی پہلی ملاقات تھی۔
आप कह सकते हैं कि दोनों की साइकिलों की पहली टक्कर थी। एक रात वीरा अपने घर जा रही थी कि कुछ गुंडे उसके पीछे आए और उन्होंने उसे दबोच लिया और ठीक उसी दौरान आलियान आया। जैसा कि फिल्मों में होता है कि हीरो ठीक उसी सड़क उसी गली से गुजर रहा होता है जहां हीरोइन मुसीबत में घिरी हुई है और हीरोइन वो नन्ही मुन्नी सी बच्ची सी बन जाती है जो एक थप्पड़ या घोंसा किसी गुंडे को नहीं मार सकती और आम हालात में वो इंसानों को उठा कर पटका करती है। यानी वो जानती है कि उसे हीरो के होते अपनी बहादुरी नहीं दिखानी। आखिरी जुमला शार्लेट ने सरगोशी सूरत अदा किया, होंठों के किनारे पर हाथ रख कर, और हाल में हंसी गूंज गई। आलियान ने अपना सर झुका लिया और एक हाथ से आंखों पर झुका लिया। ये क्या कर रही है शार्लेट? मामा का उसके बारे में ख्याल बिल्कुल ठीक है। जॉर्डन की जगह उसे फिल्मों में काम करना चाहिए। दूसरी मिस्टर बीन आराम से बन जाएगी। मॉर्गन के अंदाज और अल्फाज पर आलियान बुलंद कहका लगा कर हंसा। खुदा के लिए ऐसे ही कहके लगाते रहना, पता नहीं क्या हो गया है तुम्हें। मॉर्गन ने मोहब्बत से उसकी ठोड़ी को छूकर कहा। आलियान ने वीरा को उठाया, उसकी नाक और पेशानी से निकलते खून को साफ किया और उसे घर तक छोड़ने उसके साथ गया, जबकि वो उसे टैक्सी भी करवा कर दे सकता था। शार्लेट ने आखिरी बात फिर सरगोशी सूरत कही। कहानी यहाँ से शुरू होती है, लेकिन मैं आपको कुछ हाईलाइट सुना दूं ताकि आपका तजस्सुस बरकरार रहे। वीरा को एक और लड़का भी पसंद करता है जो अपने कॉलेज का बॉक्सर है। जी हाँ, बॉक्सर। और आलियान को एक अमीर बाप की बेटी पसंद करती है जो किराए के गुंडों के जरिए लोगों का हुलिया बिगाड़ देने को बुरा नहीं समझती। तुम्हें याद है मेरी शादी की पार्टी में तुमने गाना गाया था और रॉक स्टार की तरह गिटार बजाते रहे थे। जोश ने मेरे कान में कहा था, आलियान पार्टी में मौजूद किसी और के लिए ये परफॉर्मेंस दे रहा है, हमारे लिए नहीं। लेकिन मेरी शादी में तो वीरा थी ही नहीं। मॉर्गन ने ग्लास मुंह से लगाते हुए कहा। बॉक्सर को मालूम हो चुका है आलियान के बारे में और वो अपने दोस्तों को लेकर यूनिवर्सिटी से घर आते आलियान पर हल्ला बोल देता है और यहाँ एक भरपूर एक्शन सीन होता है। शार्लेट साथ अदाकारी करके भी दिखा रही थी और शार्लेट की शादी में वीरा मौजूद थी और मेरी फरमाइश पर भी तुमने गाना नहीं गाया था। सुनो आलियान, क्या तुमने वो चंद फिल्में देखी हैं जिनमें ऐन शादी के वक्त दुल्हन कई सौ मेहमानों की मौजूदगी में अपनी लंबी सफ़ेद फ्रॉक संभालती भाग जाती है? हाँ, एक तो स्पाइडर मैन में ही है ना। उसने शार्लेट को देखते हुए कहा। सुनो हमारे स्पाइडर मैन, मुझे लगता है इस बार दूल्हा भागेगा। कौन? तुम, मॉर्गन ने पूरे वसूख से कहा। वो गर्दन मोड़कर शार्लेट को देखने लगा, जिसकी कहानी इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुकी थी और वो वीरा को अमीरजादी के गुंडों से पिटवा कर अस्पताल में कोमा तक ले आई थी। उसका अंदाज ऐसा हो गया था कि खाते खाते सब उसे बहुत इनामाक से सुन रहे थे। चंद एक ने तो खाना खाना ही छोड़ दिया था। वीरा कोमे में थी ना। शार्लेट के तो बाएं हाथ का काम था बैठे बैठे कहानी बुन लेना। मामा महर को तो वो हंसा हंसा कर दोहरा कर दिया करती थी, झटपट कहानी बनाकर सुना दिया करती थी उन्हें। आलियान को नहीं मालूम था, लेकिन उसने आलियान और अमरहा की फर्जी मोहब्बत की कहानी भी उन्हें सुनाई थी, जिसमें वो अमरहा को पाकिस्तान ले गई थी और आलियान को उससे तलाश करने के पीछे लगा दिया था। लेकिन किया सब उसने मज़ाहिया अंदाज में था। डिनर के बाद वो उन्हें घर तक छोड़ने आया और हाल तक वापस आते आते उसकी हिम्मत जवाब दे गई। मुझे लगता है इस बार दूल्हा भागेगा। ठंड में उसकी पेशानी पर पसीना आ गया। दोस्तों के सामने नॉर्मल रहना आसान नहीं होता। रात के अंधेरे में वो एक सुनसान सड़क पर साइकिल को गोल दायरे में चलाने लगा। चलाता रहा। वलीदुल बशर के साथ बाकायदा कानूनी जंग शुरू हो चुकी थी। मामा महर का वकील केस हैंडल कर रहा था। इस पर और उसके आदमियों पर हरासा करने का दावा किया गया था, क्योंकि इतना सब हो जाने पर भी वलीदुल बशर बात जानने के लिए तैयार नहीं था। ठंडी रात उसकी गर्म सोचों की गवाह बनी। क्या उसकी साइकिल दायरे में इसलिए टकरा रही है कि वलीदुल बशर
اس کا پیچھا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، یا اس لیے کہ ابھی کچھ دیر پہلے ڈنر ہال میں شارلٹ نے اس کی اور ویرا کی محبت بھری کہانی سنائی، یا اس لیے کہ اس کہانی میں کرداروں کے نام بدل گئے، سڑک پر لاتعداد گول دائرے بن گئے، ہر دائرہ اس کی سوچ کے گر ٹکرا رہا ہے کہ کہانی میں ایک کردار کی جگہ جب دوسرا کردار لینے لگے تو پرانا کردار اپنی موت آپ مر جاتا ہے۔ موت کہانیوں میں ہو یا حقیقت میں اسے خوش آمدید نہیں کہا جا سکتا۔ موت سایہ بن کر آئے یا سایہ بنا کر ساتھ لے جائے، اس کی نحوست کم نہیں ہوتی۔ باہر جتنے بھی شور ہنگامے میلے سجا لیے جائیں، عالم وجد میں جھومتے دل میں تکلیے نہیں ہوتے۔ محو کو اس کے دہن سے آزاد کروا لیا گیا۔ امرا کے لیے پرانی امرا کو آواز دے کر بلا لینا بھی مشکل ہو گیا، اور یہ بھی آسان نہیں رہا تھا کہ امرا دادا کے ساتھ پرانی امرا بن کر باتیں کرتی رہتی۔ دادا اس کے لیے پہلے جیسے ہو گئے تھے، وہ دادا کے لیے پہلی جیسی نہیں رہی تھی۔ باتیں کرتے دادا کو اب درمیان میں کئی بار پوچھنا پڑتا، سن رہی ہو امرا؟ وہ سر ہلا دیتی۔ واجد سارا گھر انٹیریئر کروا رہا ہے، خاص کر تمہارے لیے حماد کا بڑا کمرہ خالی کروایا ہے۔ ڈیزائنر سے کہہ رہا تھا کہ میری بیٹی نے مانچسٹر سے آنا ہے، اس کے مزاج کے مطابق کمرہ ڈیکوریٹ کرنا ہے۔ بہت پڑھی لکھی ہو گئی ہے اب وہ، جب تم واپس آؤ گی تو تمہیں سب بدلا ہوا ملے گا۔ سب بہت خوبصورت ہو گیا ہے یہاں، بہت سے پھول لگوائے ہیں تمہارے لیے لان میں۔ واجد کہہ رہا تھا تمہیں ایک کار بھی لے دے گا، اور ہاں میں تمہیں پارک لے جایا کروں گا، تم وہاں سائیکل چلانا۔ خاندان والوں سے تو سمجھو واجد نے رابطہ ہی ختم کر دیا ہے، بہت کم آنا جانا کر رہا ہے خاندان میں۔ ویسے بھی اب تو تم خود بہت سمجھدار ہو گئی ہو، خود کو بدل لیا ہے، اب معاشرے کو بدلنا۔ سن رہی ہو امرا؟ جی دادا۔ اس نے سنا نہ ہوتا پر وہ کہہ دیتی اور گہرا سانس بھرتی۔ اچھا بتاؤ ابھی میں نے کیا کہا؟ آپ نے، وہ یاد کرتی، آپ نے کہا حماد نے ایک نئی ہیوی بائک لے لی ہے اور جب وہ چلاتا ہے تو آپ کو بہت ڈر لگتا ہے۔ امرا یہ تو میں نے 1 گھنٹہ پہلے کہا تھا، یعنی اس کے بعد کی باتیں تم نے سنی ہی نہیں۔ سنی ہے دادا، وہ جھوٹ پر اصرار کرتی۔ دادا خاموشی سے اسے کچھ دیر دیکھتے اور پھر سے شروع ہو جاتے اپنی باتیں دہرانے۔ سائی کو بھی اس کے سامنے اپنی باتیں دہرانی پڑتی۔ میں تمہیں کل فون کر رہا تھا، تم نے بات کیوں نہیں کی؟ میں مصروف تھی سائی، وہ کینٹین میں بیٹھی تھی اور سائی اسے ڈھونڈتا وہاں آیا تھا۔ جب مصروفیت ختم ہو گئی تھی تب فون کر لیتی مجھے، تب بھول گئی تھی۔ اس نے جھوٹ بولا، وہ سائی سے بات کرنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اسے کئی بار انکار کر چکی تھی لیکن وہ بار بار اصرار کر رہا تھا۔ میں نے تمہارے لیے بھی آن لائن ٹکٹ بک کروا دی ہے سائی، میں کہہ چکی ہوں مجھے نہیں جانا۔ اسے غصہ سا آ گیا۔ ساری یونی جا رہی ہے، تم کیوں نہیں؟ بس نہیں، مجھے کوئی شوق نہیں فٹ بال میچ دیکھنے کا۔ میچ نہ دیکھنا، ہمارے ساتھ بیٹھ جانا۔ سائی نہیں تو نہیں۔ امرا میری دوستی میں کیا کمی رہ گئی جو تم ٹھیک ہونے کے لیے تیار ہی نہیں؟ تمہارے لیے دنیا میں صرف ایک ہی انسان اہم ہے، باقی سب کی اہمیت صفر۔ سائی نے افسوس کا کھلا اظہار کیا۔ میرے لیے تم بھی بہت اہم ہو سائی۔ تم مین کے ساتھ فرانس چلی گئی لیکن تم نے مجھے انکار کر دیا۔ اب تم خود کو ایسے محدود کر لو گی اور اب تم ہر انسان کو اپنا دشمن سمجھو گی۔ تم نے ایک چیک ٹائم کو بھی دے دیا ہے، اب تو تم تھوڑی بہت تفریح کر سکتی ہو نا، تم میرے گروپ کے ساتھ چلو۔ سائی تم مجھے بیجا مجبور کر رہے ہو جبکہ میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا۔ چلو مجبور ہی صحیح، ہر انسان مرا جا رہا ہے برازیل جانے کے لیے، سارا مانچسٹر خالی ہو جائے گا، انگلینڈ اور برازیل آمنے سامنے ہوں گے، تم دیکھنا اسٹیڈیم میں کیسا ماحول ہوگا، تمہیں اتنا مزہ آئے گا کہ حیران رہ جاؤ گی۔ سائی تم سب جا رہے ہو تو اس خالی مانچسٹر کی حفاظت کے لیے مجھے یہیں چھوڑ دو، تم میری حفاظت کے لیے میرے ساتھ چلو، تمہیں بہت زیادہ مزہ آئے گا۔ مجھے اب کہیں مزہ نہیں آتا سائی، بہت بار کی طرح تم مجھے پھر انکار کر رہی ہو۔ امرا اس کی طرف دیکھتی رہ گئی۔
اس زمینی فرشتے کی طرف جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہا تھا، جس نے اسے اکیلا نہیں ہونے دیا تھا، جو رحمت تھا اس کے لیے، جو بہت مہربان رہتا تھا اس پر۔ مہربان کارل نے فریشرز پر صرف اتنی مہربانی کی کہ انہیں ترکیب سے بھڑکا کر، ان سے شرط لگا کر، انہیں مختلف کھیلوں کرتبوں میں ہرا کر فٹ بال میچ کی ٹکٹ کے لیے کچھ سے زیادہ پیسے اکٹھے کر لیے۔ عالیہ نہیں جانا چاہتا تھا اور کارل اسے لے جائے بغیر چھوڑ نہیں رہا تھا۔ مجھے پتا ہے ٹرافی انگلینڈ کی ہے، کوئی فائدہ نہیں وہاں جانے کا۔ اچھا تو تم نے کرسٹل بال میں پہلے سے ہی سارا میچ دیکھ لیا؟ اب بڑی یہ بھی بتا دے کہ کس کس کھلاڑی کو کس کھلاڑی سے پیٹ میں، منہ پر، کمر پر لاتیں اور گھونسے پڑیں گے۔ عالیہ نے دانت نکالے۔ جوانی میں تم بنا دانتوں کے کچھ اچھے نہیں لگو گے۔ ٹرافی ہماری ہے اور اسے لینے ہم برازیلیا جا رہے ہیں، بس۔ کارل نے دانت نکالے بغیر کہا۔ برازیلیا چلو گی امرہ؟ کارل امرہ کے پاس بھی آیا اس سے منانے۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، امرہ نے بہانہ بنایا۔ میرے پاس ہیں، وہ مسکرایا، جس کی وجہ سے اس نے لائبریری کی کتابوں پر بھاری فائن بھرا تھا۔ وہ اپنے پیسوں پر اسے برازیل لے کر جا رہا تھا۔ شکریہ کارل، تم بہت اچھے ہو۔ میں برا بھی بن جاؤں گا اگر تم نہیں آئیں۔ وہ مسکرا دی اور ایک چاکلیٹ بیگ میں سے نکال کر اس کے آگے کی، جو اس نے پکڑ لی۔ تم ایک خوش قسمت انسان ہو کیونکہ تم کارل ہو، کہہ کر وہ لائبریری سے نکل آئی۔ آلیان، کارل، ویرا اور شاہبیز جمعے کی رات کو ہی برازیل چلے گئے۔ سائن نے ٹھیک کہا تھا، ساری یونیورسٹی ہی برازیل لینڈ کر رہی تھی۔ اس نے دادا سے میچ کا ذکر بھی نہیں کیا تھا، لیکن سادھنا نے بتا دیا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو کہ تمہیں میچ سے دلچسپی نہیں، تمہیں تو ویوز کا حصہ بننا تھا نا؟ یا تم مجھے معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں امرہ؟ دادا اسے عالیہ نہیں دے سکے تھے، وہ اب اسے سب دے رہے تھے۔ ایسی بات نہیں، میرا دل نہیں چاہ رہا۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں، جو مشکل سے ہی خشک رہتی تھی۔ اب تمہارا آخری سیمسٹر ہے، پھر تم واپس آ جاؤ گی، جاؤ گھوم آؤ۔ دادا نے ویرا کا نام نہیں لیا تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ اسے ویرا کے نام سے تکلیف ہوتی ہوگی، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ ویرا کی دوستی اور محبت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، بس اس نے اپنے گرد دائرہ کھینچ لیا تھا۔ ویرا نے تو اسے ساتھ لے جانے کے لیے باقاعدہ منت کی تھی۔ تم اتنا کیوں بدل گئی ہو امرہ؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ چلو ہمارے ساتھ۔ میں کب بدلی ہوں ویرا؟ تم کتنی شدت سے مجھے انکار کر رہی ہو، ہر بار کر دیتی ہو۔ تم ایسی کیوں بن گئی ہو؟ ایسا لگتا ہے تمہارے بھیس میں کوئی اجنبی ہمارے درمیان گھس آیا ہے۔ اب تم آلیان کی بات بھی نہیں کرتی، اسے تنگ کرنے بھی نہیں جاتی، اور بھی بہت کچھ ہے جو میں محسوس کرتی ہوں، لیکن میری عقل اسے تسلیم نہیں کرتی۔ مجھے وہم لگتا ہے سب۔ یہ سب تمہارا وہم ہی ہے ویرا۔ میری پڑھائی بہت مشکل ہو گئی ہے، میرا زیادہ وقت اسائنمنٹ بنانے میں گزرتا ہے۔ روز تو چلو گی نا؟ ہاں، اس نے اسے ٹالنے کے لیے کہہ دیا۔ جلدی نہیں آنے دوں گی وہاں سے۔ اس نے بھی انگلی اٹھا کر ہی دھمکایا اور دونوں کہکا لگا کر ہنسنے لگیں۔ ویرا نے اس کے دونوں گال پکڑ کر مروڑے۔ امرہ دی لاسٹ ڈک اپنا سر بھی دائیں بائیں ہلا دیا۔ ویرا دی ججز بال۔ امرہ نے دونوں ہاتھوں سے اس کے بال مٹھیوں میں بھر کر کھینچے۔ گزر چکا وقت ریت پر نقش ہے اور وہ پھونکوں سے اس نقش کو مٹا رہا ہے۔ ماضی مٹ چکا ہے، اس نے قدم رکھا۔ گھنٹیوں نے فانوسی راگ تخلیق کیا اور پھر بجا دیا۔ اس نے خود کو دھند میں گھرے ہوئے پایا۔ ہوا کی گرہ پر انگنت فانوسی ذرے مبتلائے رقص ہوئے۔ وہ کس طرف جائے، اس کا فیصلہ اس نے اس کی خوشبو سے کیا، اور وہ دھند کے لبادوں کو نرمی سے ہٹاتے اس کی خوشبو کی اور بڑھنے لگا۔ اب گھنٹیاں مہروز کے حکم کی بجا آوری کرتی، محرم کے کانوں میں سرگوشیاں کرنے کو لپکیں۔ اس کی چال میں تیزی تھی، پھر بھی فاصلہ سمٹ نہیں رہا تھا، البتہ خوشبو قریب آتی جا رہی تھی۔ دور سے موٹے تنے کا پھیلا ہوا درخت نظر آیا اور دھند کے سنگ پریم
प्रीत का सरगम बनते घंटियों की आवाज़ें, अल्लाह रखा रहमान की धुनें बनी, दिल को आ लेने को हुई और दिल पर काबिज होकर मुअद्दिब हो गईं। एहतराम वाजिब है, समा इश्क है, हल्की हवा उसके बाल उड़ा रही थी। घंटियां सुर्ख पैगामात के साथ बंधी शाखों से टंगी झूल रही थीं। एक हाथ एक शाख के साथ एक पैगाम बांध रहा था। वो अमरहा थी। अमरहा क्या कर रही थी? आवाज़ जादू की तरह छूमंतर हुई। वो खुशी से पलटी, तुम आ गए आलियान। अबू नवाज की रूह में सरायत होकर साकित कर देने वाली शायरी रहमान के सुरों से हम कलाम होकर समाए यार में ढल गई। ये सब क्या है? वो उससे ज़्यादा खुश हुआ। हमारी कहानी, तुमने ये पैगामात मुझसे नहीं लिए तो मैंने यहाँ बांध दिए। वो चलकर एक पैगाम के पास गया और उसे पढ़ने लगा। मैं अपनी इब्तिदा पर तुम्हारा नाम लिखती हूँ और मेरी इंतहा तुम्हारे सिवा कुछ नहीं। पढ़कर वो मुस्कुराने लगा। अमरहा अपने दोनों हाथ पीछे ले गई और दाएं बाएं झूलकर शरारत से मुस्कुराने लगी। फिर उसने दोनों हाथ उठाकर शाखों से झूलती घंटियों को तरन्नुम से ऐसे बजा डाला जैसे असदुल्ला खां गालिब के कलाम से लबालब हुए। चांदी के ज़रूफ वादी कैलाश की परियों के नाजुक उंगलियों तले बज उठे। इर्तिकाज़ वाजिब है, समा यार है, कश्ती की लंबी नोक जो पुलों से लदी हुई थी धुंधले अंधेरे पुल के नीचे से निकली और उसने पानी में हाथ डालकर उस पर उछाल दिया, आलियान पर, और एक ऐसी मुस्कुराहट खुद पर सजा ली जैसे वो परिस्तान की मलका हो और अपने परिजात के साथ बगी पर सवार गुलिस्तान की परवाज़ पर जारी हो। मुझे तुम्हारी मुस्कुराहट याद आती है और मैं खुद मुस्कुराना भूल जाता हूँ। आलिया ने उसके हाथ को अपने हाथ में लिया और दिन से रोशन उसकी आंखों को पाया। मेरी सारी मुस्कुराहटें तुमने ले ली, अब कहते हो मुस्कुराना भूल गए। तुम आंखों की पुतलियां गोल गोल घुमाया करती थी। तुम कहा करते थे तो करती थी, अब तुम कहते ही नहीं। अमरहा, चलो हम फिर से दोस्त बन जाते हैं। नहीं, अब हम दोस्त नहीं बन सकते। उसने अपनी हाथ की पुष्ट को देखा। क्यों, तुम मुझसे नफरत करती हो? नहीं, ये नहीं कर सकती। मोहब्बत करती हो? मोहब्बत, ये भी नहीं। कोई जज्बा तो होगा तुम्हारे पास मेरे लिए। कश्ती चमकीली झील पर रवां दवां थी और फिर वो एक दूसरे पुल के अंधेरे में जा छुपी। अबाबिलों के झुंड पीछे रह गए और कोयलों की कूकू ने अंधेरे के सुरों का पीछा किया। उम्दा खास मखमल की तरह बिछ गई। अंधेरे से रोशनी में आते उसने अपना एक हाथ उसके कमर में पाया और दूसरा उसके हाथ में पेवस। शौक दीद वाजिब है, समाए रक्स है। वो सर्ख पोशाक में थी और उसके बालों में लहरें थीं। दो अटी हमवार ज़मीन पर वो महवरे रक्स थे। वो शर्मा कर ऐसे हंस रही थी जैसे उसे इस पर एतराज़ था। नीले समुंदर मेरे लिए सियाह है, गुनगुनाहट सूरत उसने सरगोशी की। तुम्हारी आंखों की स्याही में बस जाने का ख्वाब मुझे बहुत प्यारा है। वो मुस्कुराने लगी और मेरे पैरों तले बिछी सभी राहें तुम तक आती हैं। तुम ये जान लो मेरी सांसें तुमसे होकर आती हैं। उसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई और अमरहा, मुझे इंतज़ार रहेगा कि इंतज़ार कब ख़त्म होगा। कहते वो उदास हो गया। मुझे इंतज़ार रहेगा कि इंतज़ार ख़त्म होने का इंतज़ार किया जाएगा। कहकर वो बैठ गई। बेतहाशा फूल उग गए। बताओ, तुम किसके लिए जान दे सकती हो? वो भी उसके पास नीचे बैठ गया। जान तो कब की दे दी। हमने बहुत गड़बड़ कर दी ना अमरहा? हाँ, बहुत। और अब सोचने का वक्त निकल गया। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। मैं तुम्हें भूल ही नहीं पाई। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। तुम्हें याद रखते रखते मैं सब भूल गई, तुम्हें बताना भी। तुम्हें याद रखते मैंने कुछ और याद रखना ज़रूरी नहीं समझा। मैं आलियान ना होता तो तुम्हारा ख्वाब होता जिसे तुम हर रात देखती। मैं अमरहा होकर भी आलियान ही हूँ। तुम मेरे अंदर बस चुके हो। मैंने अपना आप रुखसत कर दिया है आलियान। तुम एक जादूगर हो अमरहा। वो खुद को उसकी आंखों के इतने करीब ले गया कि उसकी पलकें अमरहा के गुलाबी गालों पर लरसने लगी। तुम मेरा सहर हो आलियान।
تم سے محبت مجھ پر فرض ہے، میں نے اس فرض کو قضا نہیں ہونے دیا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ پتہ نہیں، رک جاؤ۔ وہ بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ روک لو، اس نے گردن موڑ کر کہا۔ خود کو نہیں۔ تیز روشنی نیم اندھیرے میں بدل گئی۔ خوف اور درد کی تتلیاں مقام نامعلوم سے اڑتی ہوئی آئیں۔ وہ سب سیاہ تھیں۔ انہوں نے ممبر پر اعلانیہ بلند کیا، دعا واجب ہے، سما ہجر ہے۔ اس نے جھٹکے سے گردن کو اس کے گرتے ہوئے وجود کی طرف موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کے آس پاس خون ہی تھا۔ وہ اپنی جگہ بت بنا کھڑا تھا اور ذرا دور اس کی بند ہو جانے پر مائل آنکھیں اس پر ٹکی تھیں۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی، لیکن وہ اس کی طرف نہیں بڑھ رہا تھا۔ وہ کھڑا تھا، وہ کھڑا ہی رہا، اور اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اپنے لمبے لبادوں میں لپٹی وہ چاہے توبہ کے گرد دائرہ بنا کر بیٹھ گئیں۔ پیشانی سے کھینچ کر کناروں کو ناک تک لائیں اور ایک ساتھ اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لیے۔ اندھیری رات ان پر سایہ پگن تھی اور آب توبہ زمین کی تہوں میں جل تھل ہو رہا تھا۔ انہوں نے دعا کے لیے ابتدا کی، اے خدا، اور آنکھیں بند کر لیں۔ آلیان نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کے جسم میں خون کا ایک قطرہ نہیں رہا تھا اور اس کے دل نے کام کرنا بند کر دیا تھا۔ اس کی آنکھیں اندھیرے میں بھٹک رہی تھیں۔ اسے بہت دیر میں یاد آیا کہ وہ کہاں ہے۔ اس نے اٹھنے کی ہمت کی، لیکن اس کی ہمت جواب دے گئی۔ مارگریٹ کے مرنے کے بعد اس کے ساتھ یہ ہوتا رہا تھا۔ وہ اپنی من پسند جگہوں پر اس کے ساتھ پایا جاتا رہا تھا۔ اب پھر یوں امرا کے ساتھ جسم کی گرمی سے اس کا منہ جل رہا تھا۔ اٹھ کر واش روم میں گیا اور منہ دھو کر یک پانی پیا۔ وہ برازیل میں تھا، ہوٹل کے کمرے میں دوسرے سنگل بیڈ پر موجود کار بے خبر سو رہا تھا۔ وہ ٹیرس پر آ گیا اور بہت دیر تک شہر کی ٹمٹماتی روشنیوں کو دیکھتا رہا۔ اس کی کیفیت واپس مانچسٹر کی طرف بھاگ جانے کی سی ہو گئی۔ شٹل کاک کی طرف کھڑکی کے نیچے اس پر ہلکی سی کپکپی تاری تھی اور اس کے ہاتھ واضح کانپ رہے تھے۔ اس کا ٹیرس کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھ کر رونے کو دل چاہا، بہت زیادہ روتے رہنے کا۔ وہ ٹھنڈے فرش پر بیٹھ گیا اور اپنے سر کو ہاتھوں میں تھام لیا اور پھر اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ خواب کے آخری حصے کو دہراتا۔ فون بیڈ سائڈ سے اٹھا کر واپس ٹیرس پر آ کر اس نے سائی کو فون کیا۔ تم ٹھیک ہو سائی؟ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ کیوں، کیا ہوا؟ اس وقت کیا تم نے فون؟ سائی خود بھی نیند سے جاگا ہوا لگ رہا تھا۔ نہیں، کچھ نہیں ہوا، بس ایسے ہی فون کیا۔ سائی کچھ دیر خاموش رہا۔ تمہیں کچھ کہنا ہے مجھ سے؟ ہاں کہو۔ میرا بہت رونے کا دل چاہ رہا ہے۔ مجھے روشنی میں بھی اندھیرا نظر آ رہا ہے۔ تم ماما مارگریٹ کو یاد کر کے سوئے تھے؟ انہیں میں نے بہت اچھے تصورات کے ساتھ یاد کیا۔ میں نے ان کے ساتھ بہت اچھی باتیں کی۔ میں اب کی اپنی کیفیت ٹھیک سے سمجھ نہیں پا رہا سائی۔ تمہیں ایک اچھی نیند لینی چاہیے۔ ہاں شاید۔ سائی، تمہاری امرا سے کب ملاقات ہوئی تھی؟ سائی اپنے بستر پر پورا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس شخص نے جیسے صدیوں بعد امرا کا نام لیا تھا۔ آج ملاقات ہوئی تھی۔ تم اسے فون کر سکتے ہو؟ سائی خوشی سے بولا۔ ٹھیک ہے وہ؟ اس کی کپکپاہٹ کچھ کم ہوئی۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ بہت اچھا لگا تم نے اس کے بارے میں پوچھا۔ شکریہ سائی، تم سو جاؤ اب۔ شاید اس نے سائی کو بلا وجہ پریشان کیا۔ تم بھی۔ فون کو وہ ہاتھ میں لے کر سوچتا رہا، پھر ہوٹل کے کاؤنٹر تک آیا اور امرا کو فون کیا۔ ہیلو، امرا کی آواز آئی۔ وہ خاموش رہا۔ وہ بات کہاں سے شروع کرے گا اور کہاں ختم کرے گا اور کہے گا کیا؟ تو وہ خاموش ہی رہا۔ امرا نے فون بند کر دیا۔ میں نے تمہیں بہت یاد کیا امرا۔ فون بند ہو چکا تو وہ بڑبڑایا۔ میں نے تمہیں وہ سزا دی جو خود میں نے بھگتی۔ وہ کمرے میں واپس آ گیا اور ٹیرس پر کھڑا ہو گیا۔ اسے نہیں لگتا تھا کہ اسے نیند آ سکے گی اب۔ آنکھیں جاگتے رہنے کا عہد باندھ چکی تھیں۔ وہ سائی اور این کے ساتھ برازیل آ چکی تھی۔ وہ کافی دیر سے ٹیرس پر کھڑی تھی۔ اندر این سو رہی تھی۔ ابھی جو فون آیا تھا اس نے جان لیا تھا کس کا تھا۔
उस शख्स को शुबा था कि वो उसकी खामोशी को पहचान नहीं सकती और उसे यकीन था कि ऐसा होना नामुमकिन नहीं। कलाम के लिए अल्फाज की ज़रूरत होती होगी, पहचान के लिए नहीं। क्या वो उसे फिर से ये बताना चाहता था कि उसकी वजह से उसे कितनी तकलीफ़ काटनी पड़ी, वो किस तकलीफ़ से गुजरा, उसकी अच्छी भली ज़िंदगी को उसने अंधा कुआं बना दिया। रोशनी अंदर जाती है, ना अंधेरा बाहर निकलता है। वो सब जो वो उसे नहीं कह सका, वो अब कहना चाहता है। अमरा को खौफ महसूस हुआ। खौफ से आलियान का वहम किसी अजदहे की तरह बेहोकर हो गया। अब वो नए सिरे से सोच रहा था, पहले दिन से, पहली मुलाकात से, पहले जुमले से। एक लड़की जिसकी आंखों का काजल ऐसे फैल गया है कि गालों को भी स्याह कर गया है, वो उसके सामने खड़ी है। वही लड़की ड्रैगन ड्रेस में उसके साथ खड़ी है और फिर वही लड़की हर जगह उसके साथ साथ रहती है। वो छुप कर बैठता है तो भी ये कैसी लड़की है जो उसके साए से ज्यादा उसके साथ है, रूह से ज्यादा उस पर सवार है। तुम कहते हो तुम मामा मार्गरेट न बन जाओ और मुझे ये खौफ है कि तुम वलीदुल बशर बन जाओगे, अपना कर छोड़ देने वाले। साई ने कहा था। उसने अपना सर थाम लिया। सर उठाकर उसने चंद गहरे गहरे सांस लिए। कुछ भी था, वो खुश थे कि आलियान ने उसे फ़ोन किया था। बुरा भला कहने के लिए ही सही, वो उसे याद तो रखता था, उसका नाम नहीं भूला था। दुनिया में कोई अमरा भी है, उसमें ये एहसास जिंदा था। जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरतें दरपेश होंगी, लेकिन जीने के लिए सिर्फ एक। अमरा के लिए एक आलियान, आलियान के लिए एक अमरा। आइए ब्राज़ील स्टेडियम के अंदर चलते हैं। सीरीज का फैसला कुन मैच है। इंग्लैंड और ब्राज़ील आमने सामने आने वाले हैं। लगता है सारा ब्राज़ील उठकर स्टेडियम में आ गया है। मैच शुरू होने से पहले ही लग रहा है मैच खत्म होने के करीब है। दोनों टीमें एक एक गोल कर चुकी हैं और अब दोनों टीमों के शायकीन मरे जा रहे हैं कि बस उनकी टीम फैसला कुन गोल कर दे। ब्राज़ीलियन शायकीन कुछ तंदी में थे। वो इंग्लैंड के शायकीन और खिलाड़ियों के नाम ले लेकर फिक्रे तुस कर रहे थे। उन्हें बता रहे थे कि इंग्लैंड टीम किस बुरी तरह से हार जाने वाली है। ये सब होना मामूल है। फुटबॉल की दुनिया में जो नहीं होता वही कम होता है। शायकीन जितना ज़्यादा करते हैं कम ही करते हैं। फुटबॉल फीवर स्टेडियम के अंदर इतनी हाई टेम्परेचर पर होता है जैसे वहाँ एहतमाम से एक आतिश फशां फटने वाला हो। उस फीवर का तस्वुर स्क्रीन से मैच देखने वाले कर ही नहीं सकते। वो वीरा, कार्ल और चंद दूसरे यूनिफेलोज आगे पीछे बैठे थे। उन्होंने इंग्लैंड टीम की शर्ट्स पहन रखी थी और कार्ल वीरा ने उछल उछल कर सारा स्टेडियम भी सर पर उठा लिया था। आलियान खामोश बैठा उन्हें नाचते देख रहा था। ऐसे ही नाचते कूदते कार्ल ने एक प्यारी सी बच्ची की गोद में रखे सैंडविचेस गायब कर दिए। बच्ची जिसके मामा पापा उसके पास से खड़े अपनी धुन में उछल रहे थे ताकि वो स्क्रीन पर नजर आ सके, एकदम से अपनी गोद को खाली पाकर रोने लगी और अपने उछलते कूदते बाप की शर्ट खींचने लगी। शर्म करो, लिटिल एंजल को रुला दिया। आलियान ने तेजी से चलते उसके जबड़े को दोनों हाथों में सख्ती से दबाकर कहा। बच्ची उनसे जरा दूर ही बैठी थी। एंजल तो किसी न किसी तरह जिंदा रह ही लेते हैं, हम शैतानों को अपना इंतजाम करना पड़ता है। मुझे भूख लगी थी, मैंने मेहनत की और खुराक हासिल कर ली। वैसे भी उसका बाप उसे और ले देगा। मेरा तो कोई बाप नहीं है ना जो मुझे लेकर देगा। मैं अभी बच्ची के बाप को बताता हूँ। आलियान उसकी तरफ जाने लगा। अगर तुमने ये कहा तो ब्राज़ील में फुटबॉल की तारीख का सबसे बड़ा हंगामा होगा और वजह सिर्फ सैंडविच होगा। एक सैंडविच के लिए तुम ना जाने कितने शायकीन को मरवा दोगे और कितनों को जख्मी करवा कर उम्र भर के लिए माजूर कर दोगे। ये मैं करूँगा। आलिया ने उसके बाल मुट्ठी में जकड़ कर कहा। हाँ तुम, सिर्फ तुम। उसने भी आलियान के बाल मुट्ठी में जकड़ लिए। ब्राज़ील स्टेडियम में दो लड़के एक दूसरे के बाल मुट्ठियों में जकड़े खड़े थे। बच्चे के हाथ में अब एक बड़ी आइस कैंडी आ चुकी थी और कार्ल अब आइस कैंडी को देखने लगा था।
बच्ची के बाप ने फुर्ती से बच्ची को चुप करवा दिया। तुम्हारी लिटिल एंजल की पसंद अच्छी है। मुझे याद आया कि मैं आइस कैंडी को बहुत दिनों से बहुत पसंद करता हूँ। कार्ल ने आंखें गोल गोल घुमाकर कहा। आलियान हंस दिया। तुम ऐसे की हो लिटिल एंजल सा? कार्ल ने मासूमियत से आंखें पटपटाई। बिग डेविल। आलियान ने आंखें निकाली। क्या मैं बिग डेविल हूँ? नहीं ना। उसने पीछे बैठी किस्सा गो की तरफ रुख मोड़कर कहा और रिश्वत के तौर पर जेब से चॉकलेट निकाल कर आगे की। आलियान फिर मुस्कुरा दिया। बंद करो अपना ड्रामा। वैसे तुम बहुत गुमसुम से हो, कुछ हुआ है? मैं ठीक हूँ, होना क्या है? कार्ल की नजरों से वो बच नहीं सकता था। कुछ है तो बताओ फ्रेंड, क्या तुम शोर से परेशान हो? तुम जानते हो ना, मैं सारा स्टेडियम खाली करवा सकता हूँ। अभी जाकर किसी ब्राजीलियन फैन को दबोच लेता हूँ और उसकी टीम के बारे में कुछ भड़कता हुआ जुमला कह देता हूँ। बस फिर खेल शुरू। और हाँ, जो अफवाह में बम की यहाँ फैला सकता हूँ, वो बम बनने से अब तक किसी ने नहीं फैलाई होगी। बस फिर स्टेडियम खाली। इतने पैसे लगाकर हम मैच देखने आए हैं, खाली स्टेडियम नहीं। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे मैच देखने से ज्यादा दिलचस्पी किसी और को देखने में है। बड़ी, अगर मैं शायकीन को आपस में लड़वा दूं, कैसा रहेगा? मैच तो कई बार देख चुके हैं हम, अब जरा ये भी तो देखें। बराह रास्त हंगामा देखने में कैसा लगता है? शीशे की खाली बोतलें तुम्हारे सर पर आकर लगेंगी ना, तो मजा आ जाएगा बराह रास्त हंगामा देखने का। वो इंसान अभी बना नहीं जो कार्ल के साथ ही कर सके। कार्ल इधर उधर देखने लगा और किसी के पास से खाने की चीज उड़ाई जा सकती है। वो बना बनाया इंसान तुम्हारे साथ बैठा है, तुम भी कार्ल ही हो। कार्ल ने उसके दोनों गाल पकड़कर मरोड़े। मैच शुरू होने में अभी कुछ वक्त था। बड़ी बड़ी स्क्रीनों पर स्टेडियम में मौजूद शायकीन दिखाए जा रहे थे। ये मकामी शायकीन तो अभी से पागल हो रहे हैं। कार्ल ने जरा दूर मौजूद एक लड़के की तरफ इशारा किया जो अपनी टीम के हक में अजीबोगरीब नारे लगा रहा था। तुम्हारा भी नशा टूट रहा होगा, जाकर तुम भी उसके साथ थोड़ा पागल हो जाओ। आलिया ने उसी लड़के की सिमत धक्का दिया। अमरहा ने साइक को मना कर दिया था कि वो वीरा को ना बताए कि वो वहाँ मौजूद है। उन्हें साइक की आमद का पता था, उसकी नहीं। वैसे भी कल उन्होंने चले जाना था। एन और अमरहा ने भी इंग्लैंड टीम की शर्ट्स पहन रखी थी। एन ऐसे उछल रही थी जैसे वो जापानी ना हो बल्कि बरतानवी हो और उसका एक आध भाई या दोस्त टीम में शामिल हो। उसने टीम की नुमाइंदगी करती लंबी सी टोपी भी पहन रखी थी और मुंह को पूरा रंगा हुआ था। साथ साथ हाथ में बोर्ड पकड़ रखा था, ट्रॉफी हमारी है, जिस पर पीछे कहीं से किसी ने कलर बॉल फेंक कर उसे बदनुमा कर दिया था, यानी ट्रॉफी इंग्लैंड की नहीं ब्राजील की है। मंजर कुछ ऐसा था जैसे वर्ल्ड कप फाइनल हो। अमरहा कुछ बेहतर महसूस कर रही थी वहां आकर। वैसे भी रात को जो आलियान ने कॉल की थी और किसी भी वजह को लेकर की थी, उसके लिए वो बहुत बड़ी बात थी। वो भी खड़ी होकर एन के साथ उछलने लगी और रहस्य के तौर पर की जाने वाली लहरों का हिस्सा बनने लगी। पूरे स्टेडियम में लहरें घूम रही थी और ये काबिल दीद मंजर था। वो हंसने लगी, उसे सब अच्छा लगा, जैसे सारे गम बस मिट गए। अमरहा, आलियान, वीरा, कार्ल एक साथ चिल्लाए। स्क्रीन पर उछलती एन के करीब वो खड़ी थी और अपनी तरफ आने वाली लहर की तरफ देख रही थी और खुशकिस्मती से उन तीनों ने उसे देख लिया था। वीरा ने फोन किया, तुम कहाँ हो? अमरहा हंसती, स्टेडियम। पागल गंदी बच्ची, बता नहीं सकती थी। मैंने सोचा सरप्राइज दूं। सरप्राइज स्क्रीन पर आकर? वीरा हंसी, वो बहुत खुश थी उससे देखकर। एन और अमरहा साइक के साथ हैं, वीरा ने उन सबको बताया। तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे साथ अमरहा भी है? आलियान ने साइक को फोन किया, उसने मना किया था। आलियान खामोश हो गया और स्क्रीन की तरफ ही देखता रहा कि वो फिर से नजर आ जाए, लेकिन अब ग्राउंड में खिलाड़ी आते नजर आ रहे थे। मैच शुरू हो गया। फर्स्ट हाफ में इंग्लैंड की टीम ने एक गोल कर दिया, लेकिन इंग्लैंड के शायकीन से ज्यादा ब्राजीलियन शायकीन दीवाने हो रहे थे। गुस्से से उन्हें रेफरी का ब्राजील टीम के एक अहम खिलाड़ी को रेड कार्ड दिखाए जाने से इख्तलाफ था। उनके आसपास मौजूद शायकीन
रेफरी को गालियां दे रहे थे कि अगर वो ये फाउल ना करता तो टीम 2 गोल कर चुकी होती और मुखालिफ टीम को गोल करने का मौका ही न मिलता। बच्चों बचकर ब्राजीलियों के नरगे में गिरे बैठे हो, वीरा ने मजाकन कहा। अगर दूसरा गोल भी इंग्लैंड ने कर दिया तो उन्होंने इंग्लैंड टीम के खिलाड़ियों के बजाय हमारी गर्दनें दबोच लेनी हैं। आलियान हंसने लगा। वो ये सब मजाक में कह रहे थे। स्टेडियम में ऐसा जुनून मामूल की बात होती है। फिर भी मकामी शायकीन के तेवर काफी बिगड़ रहे थे। उनका ख्याल था सारे रेफरी इंग्लैंड टीम के सारे खिलाड़ी फाउल खेल रहे हैं। अमरहा के पीछे भड़कते हुए फाउल फाउल के नारे लगने लगे। ये क्या हो रहा है साई? पीछे कोई लड़ाई हो रही है? अमरहा सहम गई। ये सब होता रहता है अमरहा, आखिरी मिनटों में देखना क्या होता है। दूसरा हाफ शुरू था। इंग्लैंड का डिफेंस अच्छा था। मुखालिफ टीम की सरतोड़ कोशिशों को वो नाकाम बना रहे थे। दूसरा हाफ खत्म होने से 15 मिनट पहले वीरा को एक मैसेज आया मोबाइल पर, जिसे पढ़कर वो थोड़ा परेशान हो गई। क्या हुआ? शावेज ने पूछा। मेरे सहाफी दोस्त का मैसेज आया है, वो भी यहाँ मौजूद है। उसका कहना है कि उसे किसी मतवक्का हंगामे की खबर मिली है। कैसे हंगामे की, ज्यादा उसे भी नहीं मालूम। उसका कहना है कि कोई हुकूमत मुखालिफ ग्रुप है जो अपने मफादात के लिए कोई हंगामा करवाना चाहता है, शायद गैर मुल्कियों को निशाना बनाना, ऐसा ही कुछ। ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसी खबरें फैली जाती हैं। सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, पुलिस जानती है कैसे अमन रखना है, और जो खबर तुम्हें मिली है वो हुकूमत को भी तो मिली ही होगी ना। कार्ल ने कहा, वैसे अच्छा है हंगामा हो भी जाए, मैं भी तो देखूंगी फिल्म बिना टिकट के, और फिर तुम्हारा दोस्त कंफर्म भी नहीं है। आलियान ने कहा। वीरा ने सब दोस्तों को मैसेज कर दिया कि मैच खत्म होते ही फौरन स्टेडियम से निकल जाएं, खतरा मोल लेने की जरूरत नहीं। कोई बदमज़गी नजर आए तो पुरसुकून रहें। आखिरी 15 मिनट में ब्राजीलियन खिलाड़ियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन आखिरी 6 मिनट में गोल इंग्लैंड ने कर दिया। जोश और अफसोस से दोनों टीमों के शायकीन ने स्टेडियम सर पर उठा लिया। साई वीरा का पैगाम पड़ चुका था। उसने अमरहा और एन को चलने के लिए कहा। आलियान और वीरा उठ चुके थे, जबकि उछलता कूदता कार्ल पहले ही कहीं गायब हो चुका था। वीरा ने अब वाज़ेह खतरे की बू सूंघ ली थी। कहीं कोई एक ऐसा नारा गूंजता कि उस हिस्से में बात बढ़ जाती। मैच के दौरान गाली गलौज, हाथापाई, तू तड़ाक, खाली बोतलें फेंकना आम बातें थीं, लेकिन ऐसी तंदी और तैश नहीं होता था जो अब दिखाई दे रहा था, जैसे सब जानबूझकर किया जा रहा था। साई निकल चुका है? आलिया ने पूछा। हाँ, उसने कहा है कि वो जा रहा है। वीरा ने फोन कान से हटाया। वो दोनों स्टेडियम से बाहर आ गए और अभी वो सड़क तक ही आए थे कि पुलिस की नफरी तेजी से अंदर स्टेडियम की तरफ भागती हुई नजर आई। उनका अंदाज अलर्ट था। एकदम ही स्टेडियम के बाहर, स्टेडियम के अंदर कुछ हो जाए मंजर नुमाया हो गया। चलो आलिया, जल्दी चलो। वीरा आगे को भागी। वो भी सड़क पर उसके साथ भागा और जरा दूर जाकर रुक गया। क्या हुआ? वीरा पलटी। अमरहा, उसके चेहरे के सारे रंग उड़ गए और उसे देखकर वीरा की अपनी शक्ल पर साए लहराए। वीरा ने फोन निकाला अमरहा को फोन करने के लिए, लेकिन आलियान पहले ही कॉल मिला चुका था। 2 बार बेल हुई। हेलो, अमरहा की आवाज आई। अमरहा, तुम कहाँ हो? अल्फाज पूरे अदा नहीं हुए कि फोन डेड हो गया। उसने दोबारा कॉल मिलाई, लेकिन फोन बंद जा रहा था। उसका फोन बंद जाना ही था। उसके फोन की बैटरी निकल चुकी थी और वो कहीं दूर गिर गया था और वो खुद भी गिर गई थी। वो बस निकल जाने को ही थे कि भड़का हुआ एक ग्रुप ऊपर से गथम गुत्ता होता उनके ऊपर आ गिरा। अमरहा का सर एक सख्त चीज से टकराया और उसके सर से खून निकलने लगा। साई ने जल्दी से उसे उठाया। एक मुकामी फैन ने साई को धक्का दिया। साई भी दूर जा गिरा। मैच का आखिरी मिनट खत्म हो चुका था। इंग्लिश टीम जीत चुकी थी और फौरन ही स्टेडियम में मुख्तलिफ जगहों पर ग्रुप के ग्रुप आपस में उलझकर गुत्थम गुत्था हो गए और एक दूसरे पर मुख्तलिफ ठोस चीजें फेंकने लगे। इस सारे अमल को 30 सेकंड भी नहीं लगे होंगे, जैसा कि सब कुछ तयशुदा था कि ऐसा ही होना है। स्टेडियम की अंदरूनी हालत एकदम से बदली और आम शायकीन सहम गए। मंजर होलनाक हो गया। शोर बढ़ गया।
और हंगामे के आसार नुमायां हो गए। जो छुपा हुआ था वो निकल आया। स्टेडियम ने जंग का मैदान बदलने में 1 मिनट का वक्त भी न लिया। एन कहीं आगे निकल चुकी थी। अमरा को सर पर चोट की वजह से बुरी तरह से चक्कर आ रहे थे। साई भी नजर नहीं आ रहा था। वो अकेली धक्के खाती, जगह बनाती आगे बढ़ने लगी कि एक हिप्पी लड़के ने उसका बाजू दबोच लिया। सिक्योरिटी फोर्स तेजी से अंदर दाखिल हो रही थी। 60,000 शायकीन के हजूम में एकदम से भगदड़ मची। तेजी से बाहर निकल जाने का अंदाज ऐसा हो गया जैसे कयामत आ गई हो। खाली बोतलें सर और जिस्म के दूसरे हिस्सों पर आकर लगने लगी। दोबारा अमरा की कमर पर कोई वजनी चीज आकर लगी जिसने उसका बाजू दबोचा था। पूरी कूद लगाकर उससे बाजू छुड़वाकर वो आगे को भागी थी, लेकिन उसके बाजू पर फिर वही गिरफ्त पड़ी और सुर्ख आंखों वाले उस नशई हिप्पी लड़के ने उसके गर्दन पर झुककर काटना चाहा। अमरा ने पूरी कुव्वत से चीख मार दी। उसका खून बन जा रहा था। ये मालूम होते ही अपना खून फेंक कर वो रश में मुखालिफ सिंह भागा। वीरा भी उसके पीछे लपकी। तुम उस गेट की तरफ जाओ, मैं दूसरे गेट की तरफ जाती हूँ, भागते हुए वीरा चिल्लाई। उसके भागने के अंदाज में इतनी शिद्दत और तेजी थी कि वह बहुत सौ को फलांगता, गिराता, धक्के देता हुआ आगे बढ़ा। एक हजूम था जो मुंतशिर बाहर निकल रहा था और पुलिस की नफरी बढ़ती ही जा रही थी। जो हजूम में नजम लाने की कोशिश कर रहे थे, भगदड़ का माहौल था। अमरा वो पूरी कुव्वत से रश में घुसकर चिल्लाने लगा। उसकी आवाज में ऐसी गरज थी कि इतनी अफरा तफरी में भी बहुत सौ ने गर्दन मोड़कर उससे देखा। अमरा वो फिर से चिल्लाया। उसकी सांस से बेकाबू हो रही थी। अगर अमरा फौरन उसके सामने आ जाती तो वह जमीन पर गिर जाता। उसमें खड़ा होने की ताकत नहीं रही थी। वहम उससे हौलाने लगे थे और खौफ ने उसके दिल पर पंजे काट दिए थे। उसे इल्हाम हुआ और वो गेट से अंदर हो गया। पुलिस की नफरी खड़ी सबको बाहर निकाल रही थी, लेकिन वो सर को झुकाकर उस पार हो गया। उससे पूरे स्टेडियम के हजारों चक्कर भी लगाने पड़ते तो उससे कम लगते उस इंसान के लिए जिसे तलाश किया जा रहा था। अमरा बाहर हो सकती थी, उसे ये ख्याल आया था, लेकिन उसका वजदान उसे बता रहा था कि वो अंदर ही है और ठीक नहीं है। उसने उसके बाजू को किसी खूंखार जानवर की तरह पकड़ रखा था और वो उसे घसीटकर किसी खास सिमत लेकर जा रहा था। वो चिल्ला रही थी, खुद को आजाद करवाने की कोशिशें कर रही थी, लेकिन उस हिप्पी के दूसरे साथी ने उसके गिर्द घेरा सा बना लिया था और उसे मजबूती से कमर से पकड़ रखा था और वो दोनों आपस में अपनी जबान में बात कर रहे थे जिसे अमरा नहीं जानती थी। आलियान तेजी से इधर उधर भाग रहा था और उसे मुसलसल आवाजें दे रहा था। हेलीकॉप्टर ग्राउंड के ऊपर परवाज करने लगा, यानी मामला शिद्दत इख्तियार कर चुका था। सिक्योरिटी फोर्स हर तरफ फैल रही थी। कहीं सिक्योरिटी फोर्स और शायकीन में तसादम हो रहा था, कहीं शायकीन और शायकीन में। मामला ऐसे बिगड़ रहा था जैसे जलती आग पर और तेल डाला जा रहा हो। वो उसे दूसरे गेट से निकालकर बाहर ले जा रहे थे। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे वो उसे गाड़ी में डालकर ले जाने वाले हैं। वो मुआशरे के मौके से फ़ायदा उठाने वाले नासूर थे जो हर जगह पाए जाते हैं और अपनी बदखसलती से बाज नहीं आते। कार को साई मिल चुका था और उसने अमरा के लापता होने के बारे में बता दिया था। दूसरी तरफ अंदर से कार लाया था। एन, साई, शाहवेज और चंद दूसरे स्टूडेंट्स उसे बाहर रश में देख रहे थे। साई ने सबको फोन करके बता दिया था, क्योंकि अमरा का फोन बन जा रहा था तो उसे डर था कि वो ठीक नहीं है। कार की नजर दूर अमरा पर पड़ी और वो तेजी से भागता हुआ उसकी तरफ आया। वो आम नॉर्मल अंदाज से नहीं चल रही थी। उससे एक लड़का घसीट रहा था और दूसरा उसके मुंह पर हाथ रखकर बार बार उसका मुंह दबा रहा था। कार उसके पास पहुंचता उससे पहले आलियान सीटें फलांगता हुआ उनके करीब चला गया। वो पीछे कहीं तेजी से भागता हुआ आया था और उसने आते ही उन लड़कों को लाते और घोंसले मारने शुरू कर दिए। कार भी पहुंच गया और जिसकी गर्दन हाथ आई उसने दबोच ली। अमरा बुरी तरह से खौफजदा थी। वो कांप रही थी और उसके सर से खून निकल रहा था और नाक मुंह से भी। 2 लड़के पहले ही भाग गए और एक कार से खुद को छुड़ाकर भागा।
अमरहा पर नजर पड़ते ही आलियान की आंखें नम हो गईं। उसने डरी सहमी अमरहा को अपने साथ लगाया और हाथ से उसकी नाक मुंह का खून साफ किया और उसके सर के जख्म को देखने लगा। तुम्हें काफी चोट आई है, उसने ये कहा, और उसने ये सुना तो वो फौरन खुद को रोने से रोक नहीं सकी। नहीं, ज्यादा नहीं है, मुझे बिल्कुल तकलीफ नहीं हो रही अब। टूट टूट के अल्फाज निकले, जैसे जज्बात की शिद्दत से अल्फाज बिखर से गए। उसका सर आलियान के सीने से लगा था। उस सर पर लगी कितनी भी बड़ी चोट में दर्द कैसे उठ सकता था भला। कार्ल ने जल्दी चलने का इशारा किया और आगे भाग गया। उसे अपने साथ लगाए आलियान बाहर की तरफ आया और गेट से बाहर होने से पहले एक जोरदार धक्का लगा के अमरहा का हाथ आलियान से छूट गया और वो गिर पड़ने के अंदाज से बहुत आगे निकल गई। सड़क से दूर किसी महफूज हिस्से की तरफ भाग जाना अमरहा, आलियान पीछे से चिल्लाया और पूरा जोर लगाकर उसने हजूम में से जगह बनाकर आगे निकल जाना चाहा। अमरहा ने धक्के खाते आगे बढ़कर गर्दन मोड़कर उसे देखा और आलियान का दिल वहीं ठहर गया। एहतराम वाजिब है, समा इश्क है। हजूम ने उसे एक और धक्का दिया, वो आगे निकल गई। धक्के ने उसे लड़खड़ा दिया और वो पीछे रह गया। अमरहा ने फिर गर्दन मोड़कर उसे देखा। वक्त ने दगा दिया, वो वहीं ठहरना गया। अगले धक्के से वो बाहर निकल गई। सड़क का मंजर कुछ और हो चुका था। मिनटों की गेम थी, लम्हों में बदल गई। सिक्योरिटी फोर्स मुंतशिर हजूम से निपटने में मशगूल थी। रात का वक्त था और आंसू गैस के धुएं ने रात को खतरनाक बना दिया था। रबर की गोलियां फायर की जा रही थीं। मुख्तलिफ अशकाल के मास्क पहने हुए अफराद सिक्योरिटी फोर्स पर ठोस चीजें और आंसू गैस उछाल रहे थे। कहीं कुछ ग्रुप्स आपस में मुतसादिम थे, कहीं फोर्स के साथ। एक बड़ा हंगामा ब्राजीला स्टेडियम के अंदर और बाहर फूट चुका था। एक ऐसा हंगामा जो सानिये में बदलने ही वाला था। एम्बुलेंस के सायरन की आवाजें 400 गूंज रही थीं। दूर दूर तक सड़क पर एक जंग का अमली मंजर देखा जा सकता था। तसादुम की तस्वीर थी और बगावत की बू। वो सड़क पर निकलकर एक सिम भागने लगा। कार्ल उसके पीछे ही था। अमरहा कहाँ है? कार्ल ने चिल्लाकर पूछा। उससे मैंने सड़क से दूर निकल जाने के लिए कहा था। 2 फायर फजा में गूंजने और चीखों से कान फटने लगे। उन पर शीशे की बोतलें उछाली गईं। एक ने आके बढ़कर कार्ल पर हमला करना चाहा, जिसे कार्ल ने पहले ही दबोच लिया और सड़क के एक तरफ नीचे जमीन पर पटक दिया। वक्फे वक्फे से, लेकिन तेजी और शिद्दत से आंसू गैस उछाली जा रही थी और रबर के फायर किए जा रहे थे। कौन दफा कर रहा था और कौन हमला, फैसला करना मुश्किल हो गया था। आलियान तेजी से सड़क पर भाग रहा था और चिल्ला रहा था, अमरहा। उसके पैरों तले की जमीन खिसकती जा रही थी और उसकी आंखों के आगे बार बार अंधेरा छा रहा था। उसे अपना ख्वाब याद आ रहा था। अंधेरा, धुआं, तसादुम और खतरा। निशानियां अच्छी नहीं थीं। वो जरा देर को रुककर हाँफने लगा। उसे अगला कदम उठाना मुश्किल हो रहा था। उसके पैरों के आसपास एक गैस का गोला गिरा। वो तेजी से दूसरी तरफ हुआ। उसके बाजू पर रबर की गोली आकर लगी, लेकिन वो रुका नहीं। उसका जिस्म उसे हरकत करने से जवाब देता जा रहा था। उसकी कैफियत उस इंसान सी हो गई जिसे अपने किसी अजीज के ताबूत को उठाने के लिए कहा जाता है और वो खुद को पहाड़ उठा लेने के काबिल तो समझ लेता है, लेकिन वो ताबूत नहीं। ब्राजीला स्टेडियम धुएं उगलने लगा। चंद एक जगह आग भड़क उठी। धुएं के फैलाव से सड़क पर हरकत बहाल हो गई। पूरी कुव्वत लगाकर वो फिर भागा और चिल्लाया, अमरहा। वो सारी दुनिया को आग लगा देगा। अगर कुछ हुआ तो वो सबको जला डालेगा। अब वो तेज से सड़क पर भागने लगा। उसका बस नहीं चल रहा था। रास्ते में आने वालों को रोन डाले, कुचल दे, वरना हलक फाड़ कर इतनी शिद्दत से चलाए कि सब अपनी अपनी जगह साकित हो जाएं। उसने फिर आवाज दी, अमरहा। उसका दुपट्टा कब का कहीं गिर चुका था। उसे चलने में मसला हो रहा था। चंद लोग उस पर आ गिरे थे और उसकी टांग जैसे टूट ही गई थी। वो बामुश्किल लंगड़ा कर चल रही थी। धुएं के बादलों में उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी आंखों में सख्त चुभन हो रही थी
और उनमें से मुसलसल पानी निकल रहा था। वो कभी ऐसे तसादुम से दो चार नहीं हुई थी। वो तो जिंदगी में पहली बार फुटबॉल मैच देखने स्टेडियम आई थी। उसे तो ये तक मालूम नहीं था कि हंगामी सूरत हाल में क्या करना चाहिए। इस वक्त उसकी अकल बिल्कुल माऊफ हो चुकी थी और वो बुरी तरह से सहम चुकी थी। उसे हर एक से डर लग रहा था, कोई उसे घसीटेगा या मार देगा। सड़क का मंजर इंतहाई होलनाक हो चुका था। उसका दिल चाहा वापस अंदर भाग जाए। उसके समझ में नहीं आया कि वो किस तरफ को भागे, और फिर जिस तरह बहुत से लोग भागे जा रहे थे वो भी भागने लगी। सड़क पर वो सब मुंतशिर हो गए। सिक्योरिटी फोर्स की नफरी बढ़ती ही जा रही थी, फिर भी तसादुम थमने का नाम नहीं ले रहा था। वो तेजी से इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन अब वो डिफेंस करने की पोजीशन में आ चुके थे। जो ग्रुप्स हमले कर रहे थे उनके हमले बहुत शदीद थे। सिर्फ चंद मिनट लगे ये सब होने में, सिर्फ चंद मिनट। आलियान को ये मालूम नहीं था कि वो ठीक से भाग रहा है या नहीं। बस उसे उसका वजदान कह रहा था कि उसे इसी सिम जाना चाहिए। एक और गोला उसके पीछे और जरा आगे आकर गिरा और धुएं के बादल फैलने से पहले उसने अमरहा को बहुत दूर देख लिया। अमरहा वो पूरी जान से चिल्लाया कि वो उसकी तरफ देख ले, लेकिन वो बहुत दूर थी। उससे ठीक से चला नहीं जा रहा था। वो डर कर खड़ी थी। उससे जरा आगे एक ग्रुप में तसादुम हो रहा था और उसके पीछे गैस के गोले फेंके जा रहे थे। फासला सिमटा, वो भागकर उसकी तरफ लपका। सड़क के दूसरी तरफ से तसादुम के उस पार से वीरा ने उसे देख लिया और वो उसकी तरफ भागी। अमरहा फासला सिमट चुका था, वो उससे कुछ ही दूर था। अब अमरहा ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। इर्तिकाज वाजिब हुआ, समाए यार गालिब आया, और इतनी दूर से वो आलियान के उस तरह अपनी तरफ भागते आने पर फिदा हो गई। मोहब्बत सुबह का आलिम है, उसमें रात नहीं होती। वो उसके लिए कैसा भागा फिर रहा था। मोहब्बत अबद की घड़ी है, ये फना नहीं होती। जो हो चुका था अब तक वो वहीं मिट चुका। मोहब्बत तर्ब का साज है, उसमें आह नहीं होती। जो फासला था वो कम होने लगा। कहीं मत जाओ। धुएं के बादलों ने दो लोगों की एक सोच को जा लिया। अब कहीं मत जाओ। वो आलियान की तरफ घूम चुकी थी और उसकी तरफ आ रही थी, और एक भड़के हुए लड़के ने इंग्लैंड टीम की शर्ट पहने एक लड़की के सर पर शीशे की वजनी बोतल से ज़रब लगाई। वो लड़की जो अमरहा थी। वीरा बिजली की सी तेजी से अमरहा की तरफ लपकी। कार्ल और साई भी आगे पीछे उसकी तरफ आ रहे थे। उसके सर पर जब लगते देखकर सारी जमीन अपने चक्कर पर उल्टी घूमती आलियान के पैरों तने से खिसक गई और वो भागते भागते रुक गया, क्योंकि 2 फायर हुए। ब्राज़ील स्टेडियम के बाहर फैला सारा धुआं आलियान की आंखों में घुस आया। सारा भागता दौड़ता हजूम उसके जिस्म को रोंदने लगा। वो जहाँ था वहीं खड़ा रह गया। एक फायर रबर की गोली का था। वीरा पूरी शिद्दत से चलाई और कितने ही लोगों को फैलांगती हुई उसकी तरफ आई। फ्रीज दूसरा फायर रबर का नहीं था। कार्ल और साई ने कितनों को ही धक्के देकर गिराकर उस तक पहुंच जाना चाहा। वो दोनों उससे चंद कदम के फासले पर पहुंच गए। फ्रीज कुछ फैसले सिर्फ दायमी जुदाई के हाथों ही तय पाते हैं। इससे पहले खबर होती है ना एहसास। इतराफ में फैला धुआं, फोर्स की नफरी, भागते दौड़ते इत्साम, सभी फ्रीज, सब जामिद हो गया। वो सड़क पर घुटनों के बल गिरी और फिर उसके पुष्ट सड़क से जा लगी। खून उसके गिर्द फैलने लगा। अमरहा उसने चिल्लाना चाहा, लेकिन चिल्ला नहीं सका। वो वहीं उससे कुछ दूर खड़ा था। वो जो अमरहा का आलियान था। उसने उसकी तरफ भागना चाहा, लेकिन भाग नहीं सका। तो ये साबित हो गया, जिस्म से जान उस वक्त नहीं निकलती जब अपनी जान निकलती है। ये जान उस वक्त निकलती है जब जान से प्यारे की जान निकलती है। दुआ वाजिब कर दी गई। समा हिज्र की मनादी हुई। उसके जिस्म ने जान छोड़ दी और वो घुटनों के बल सड़क पर गिरता चला गया। उसका अपना जिस्म टुकड़ों की सूरत मुंतशिर हुआ। दुनिया में कोई दुहाई देने के लिए तैयार हुआ। अमरहा के सर पर पहुंचने से पहले
کارل نے آلیان کی طرف دیکھا اور اس نے جانا کہ اگر ایک مر چکا تو دوسرا مرنے جا رہا تھا، کیونکہ آلیان نے اس انسان کی بند ہوتی آنکھیں دیکھ لی جن میں اس نے خود کو بند کر لیا تھا۔ اس کی آنکھ سے خون ٹپکنے لگا جس کا رنگ سرخ نہیں تھا۔ امرا کے وجود سے آلیان کی اپنی زندگی قطرہ قطرہ بہنے لگی جس کا رنگ سرخ ہی تھا۔ اے آنکھ تو کیوں روتی ہے؟ قافلے والے چلے گئے۔ اے آنکھ پھر تو کیوں روتی ہے؟ وہ مجھے پیچھے اکیلا چھوڑ گئے۔ اے آنکھ تو رونا بند کر، اس قافلے میں میرا محبوب تھا۔ افسوس، ہاں پھر تو رو۔ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔